नमस्कार आसिफ भाई। बंदी दर्पण। हाँ। नमस्कार, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। मैं अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती भारती जी को मंच पर आह्वान करती हूँ। वैसे ही कर्नाटक विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सविता जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। और एक बार नमस्कार, शुभ मध्याह्नः। भाषा दिलों को जोड़ती है, भाषा प्रेम जगाती है। नेशनल कॉलेज जयनगर के हिंदी विभाग की ओर से विशेष अतिथि उपन्यास कार्यक्रम आयोजित है। मंच पर महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर कमला वाईसी मैडम जी तथा अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष भारती मैडम जी तथा कन्नड़ विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सविता जी सुसज्जित है। संसाधन व्यक्ति के रूप में अपने ही कॉलेज की पूर्व छात्रा मसीहा अंजुम ऑनलाइन जुड़ रही है और हिंदी भाषा एक विहंगम दृष्टि इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेगी। कॉलेज के छात्र भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन जुड़े छात्रों का मैं हर्षपूर्वक स्वागत करती हूँ। तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं श्रीमती भारती मैडम जी से अनुरोध करूंगी कि संसाधन व्यक्ति का परिचय देना है। आइए मैडम जी। Good afternoon. I believe today's guest speaker is already has entered online. Hello. Yes, ma'am, I'm here. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, everyone present here, online as well as offline. I deem it a privilege with pleasure to introduce the guest speaker, Ms. Masiha Anjum. Basically, Ms. Masiha Anjum is a native of Bangalore. That is, she has been born and brought up here itself. Had her schooling from Carmel School. It really feels great to share this with all of you that she has been our alumni. Completed her PUC and graduation at our institution itself. At present, pursuing her chartered accountancy course. Her accomplishments in brief. I don't want to limit her accomplishments, what has been given here. But at the outset, let me share this with you. She has been a recipient of Meritorious Service Award in SSLC, a topper in commerce at PU level NCJ, a gold medalist in BCom at NCJ Autonomous Jayanagar, 3 years of service in the field of taxation and audit, currently working as a taxation manager. Though Masiha was a commerce student, she has been a familiar name to almost every department at NCJ. Not just because of the reason, that she was a meritorious, bright student, nor just as a debater, because she used to take part in
almost as long as she was here with us. She used to take part in almost in every competition, be it a debate or speaking contest of every department. So, as to her credit, I think every year she used to bag and then grab also prizes. She has to her credit so many prizes and awards at different levels, college level and intercollegiate level. And in this regard, I should not forget to share this with you that brought so many times laurels to this college. I was telling you, that she has been a familiar name, not just as a bright scholar, not just as, that for her co-curricular activities. Probably she is ever remembered here for her humility. So in spite of all, I think that itself has taken to her that great heights. There is a saying goes, that Vidya Vinayena Shobhate. I think it holds good for Miss Masiha Anjum. Such an eminent guest speaker, our alumni, as a guest speaker, Masiha Anjum is virtually present to enlighten us on the given topic. Dear Masiha, with a lot of elation and anticipation, excitement, we're all waiting for your presentation. All the best to you. Thank you, Dr. Asha Chavan, Madam, for giving this opportunity to introduce the guest speaker today. Thank you. धन्यवाद मैडम जी। अब हम प्राचार्य महोदया डॉक्टर कमला जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो भी दो शब्द कहे। मैडम जी, प्लीज। Good afternoon, everyone, both online and offline. Madam has already told, दो शब्द में. I'm a careful observer too. Okay. We have with us Srimati Masiha Anjum. Till now I heard about you, Madam Masiha. Welcome to National College Jayanagar in the platform. So it was very nice to know about you, that you are a very bright student of the college and you are participating in all the activities of the college. So today you have chosen the subject Hindi Bhasha Ek Vihangama Drishti. That is a very beautiful topic according to me. Given any language, it is beautiful. We have few classifications for the languages, maybe Dravidian, Aryan, whatever. They will be having, see, when we study the language, either we can study it from linguistic point of view, that is, language is a science. Especially when it comes to Kannada, it is 100% science, and also mathematics is there if it is calculated. So as for Hindi, the Hindi will have its own beauty. English will have its own beauty. Every language is rich in its content, and it has its own limitations also. That is the specific feature of any language. Every language has its a beautiful aspect and limitation. If you take English, the most versatile aspect is it has only 26 letters and all the things are expressed in 26. If you go to Chinese, the alphabets are hundreds. Okay, it's so difficult. It's 56 in Kannada, but the science of the language is so fantastic. We can evolve wonderful things. We can evolve wonderful feelings. A language is not just a language. Language is a culture. Okay. So today you are taking us through a bird's eye view or a journey of the new perspective of the Hindi language. See, I welcome you for this program webinar on behalf of the college and on behalf of all of us here.
So thank you once again for providing this opportunity. I wish all the best for the program, Madam Masiha Anjum. Thank you. थैंक यू मैडम जी। अपने कार्य में व्यस्त होने पर भी हमारे स्नेह अनुरोध पर प्राचार्य महोदय डॉक्टर कमला जी ने कुछ पल हमारे साथ बिताने का वादा किया है और मैं चाहती हूं कि शायद वो अपने व्यस्त कारण की वजह से जाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें पुष्प गुच्छ से सम्मानित करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम जी। मैं मैडम जी से भी अनुरोध करूंगी कि भारती मैडम जी को भी वो पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें और डॉक्टर सविता जी को भी वही पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। धन्यवाद मैडम जी। अब मसीहा अंजुम जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचारों को प्रस्तुत करें। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पहले तो हमारी प्रिंसिपल मैडम को कमला मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारती नारायण मैम को आई कैन से दैट आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर इंट्रोडक्शन, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज मुझे इस विषय पर बात करने के लिए कहा, हिंदी भाषा एक विहंगम दृष्टि, मतलब अ बर्ड्स आई व्यू ऑन लैंग्वेजेस। एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर लुडविग विटगेंस्टाइन ने कहा था, मेरी भाषा की सीमा मेरी अपनी दुनिया की सीमा भी है। इसका मतलब यह है, हम जितनी भाषाएं जानेंगे उतना हमारा दृष्टिकोण बड़ा होगा। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर भाषा ना होती तो हम अपंग हो जाते। हमारे भावनाओं को बतलाने के लिए भाषा बहुत अति आवश्यक है। भारत में कुल मिलाकर 121 आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें से प्रमुख जो भाषाएं हैं वो हमें शाला में सिखाई जाती हैं। इसे सिखाने का एक मार्ग है, जैसे त्रिभाषी सूत्र कहा जाता है, जिसमें हमें 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं। जो एक भाषा है जो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जो अंग्रेजी होती है, एक हमारी राजभाषा है जो हिंदी होती है, और एक प्रदेशी भाषा होती है यानी जिस प्रदेश में हम और आप रहते हैं उस भाषा को हमें सिखाया जाता है। जैसे हम कर्नाटका में रहते हैं तो हमें कन्नड़ा सिखाई जाती है। यदि आप एक आदमी से उस भाषा में बात करते हैं जो वो समझता है तो वे उसके दिमाग तक जाएगी। यदि आप उसे उसकी ही भाषा में बात करेंगे तो वो उसके दिल तक जाएगी। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। 14 सितंबर को
हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्र होने के कारण इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। हिंदी भाषा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी भाषाओं में इंडो यूरोपियन परिवार की इंडो आर्यन शाखा से संबंधित है। अंग्रेजी के साथ हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। हिंदी वह भाषा थी जिसे स्वतंत्र के संघर्ष के दौरान भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय पहचान पे प्रतीक के रूप में अपनाया था। 12वीं शताब्दी के बाद से ही हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। यदि हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करते हैं तो यह गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन इसमें और तेजी आ रही है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा थी जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता था। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत के ही कोख से हुआ है। हिंदी भारत की राजभाषा है और इसीलिए यह भारत के अधिकतम राज्यों में बोली जाती है। इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना हमें भारत की किसी भी हिस्से में जाने से पहले संवाद करने के लिए कई कठिनाइयां नहीं होगी अगर हम हिंदी जानते हैं तो। हिंदी भाषा के ज्ञान से हमें रामायण, भगवद गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ने का एक अवसर मिलता है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में पढ़कर जो स्पर्श हमें मिलता है वह कभी कोई दूसरी भाषा में नहीं मिल सकता। मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगी। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक कविता जो लिखते हैं उसमें प्रसिद्ध नाम जिन्होंने पाया है वो है गोस्वामी तुलसीदास, कबीर दास, रहीम खान खाने, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद विकास का दौर शुरू हुआ जो आज भी जारी है। भारत में पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई है और कई वर्षों तक बढ़ने की उम्मीद है और सालाना 10% की वृद्धि दर के साथ सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर लाता है। चाहे आप मनोरंजन के लिए या आपका करियर के लिए या यहाँ तक कि सिर्फ निजी यात्रा के लिए हिंदी का महत्व फायदेमंद है। यह निम्नलिखित जैसे कई कारणों से है। भारतीय गीतों और भजनों की विभिन्न लोकप्रियता और पॉप सिंगर जो आजकल बढ़ रहे हैं उन कलाकारों का बहुत लोग सारे विश्व में सबको लोकप्रिय है। विज्ञान से वाणिज्य और व्यवसाय के लेकर विभिन्न मल्टीमीडिया तक जैसे कि भारत को दुनिया में बढ़ती रुचि के साथ एक व्यवहार विश्व अर्थव्यवस्था बनने के लिए दिखाया गया है। बॉलीवुड के रूप में इसे हॉलीवुड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। ना केवल संस्कृत राज्य अमेरिका में बल्कि सारी दुनिया में जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, एशिया और जापान में भी हिंदी को बहुत लोकप्रियता पाई गई है। जो कोई भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है उसे भारत में अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। भारत वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है जीडीपी के हिसाब से। यह भी कहा जाता है कि भविष्यवाणी के हिसाब से 2025 में भारत जापान से आगे निकल जाएगा। विकास और नवाचार के लिए भारत की विशाल क्षमता ने हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में महत्व दिया है। पर्यटन के अलावा भारत वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्था और अन्य सूचना प्रणाली, डिजिटल मीडिया जैसे हर दूसरे बहुमूल्य से बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी देश के भीतर कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। भारत का विकास अजेय लगता है और धीमा होने का कोई संकट नहीं दिखाई देता। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में परिचालन
और बिक्री विस्तार पर नजर रखने वाली कंपनियां ज्यादातर ऐसे लोगों को भर्ती कर रही है जो भारतीय संस्कृति से परिचित है और जो स्पष्ट रूप से और धारा प्रवाह हिंदी बोल और लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेष बाजार खंड के रूप में हिंदी भाषा आबादी का महत्व है। इसी अधिकांश विशिष्ट दिमाग वाले व्यवसायों के लिए एक बहुत ही व्यवहार और महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया गया है। जो लोग धारा प्रवाह हिंदी बोल और लिख सकते हैं उन्हें दक्षिण एशियाई की कंपनियों और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों के लिए उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। आप भी देख सकते हैं कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग जगह बताई जाती है, ताकि हमें बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिससे मिलती है, जिससे हम डॉलर कमाते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। अगर आप भारत का प्रवास करने की योजना बना रहे हैं या नहीं, अंत में आप निश्चित रूप से हिंदी भाषा के महत्व को सीखने में अपने निर्णय को बहुत फायदेमंद पाएंगे। आपके पास हिंदी सीखने के लिए शायद पहले से ही अपने कारण होंगे, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कोई कारण नहीं है तो या फिर अभी भी आप हिंदी सीखने के लिए कुछ अभी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़े कारण बताती हूँ कि हिंदी सीखने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दुनिया भर में आधे से ज्यादा अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। इंडिया की आबादी है 132 करोड़। कई नौकरियां भारत को आउटसोर्स की जाती हैं। भारत सबसे वैदेशिक पर्यटक स्थल में से एक है। बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता, उनके उनके जैसे आप जानते हैं कि बाहुबली, दंगल ऐसी फिल्मों को सारे विश्व में कितना लोकप्रियता मिली है। इसकी वजह से हमें सिर्फ लोकप्रियता नहीं, पॉपुलैरिटी ही नहीं, बल्कि हमें रेवेन्यू का भी बहुत जैसे दंगल ने 900 करोड़ कमाए थे पूरे विश्व में, बाहुबली ने 1500 करोड़ कमाए थे। तो इससे हम देखते हैं कि हिंदी हर एक देश में बहुत लोकप्रिय है। ना कि हिंदी बॉलीवुड सिनेमा सिर्फ इंडिया में ही नहीं देखा जाता, वो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान, चाइना सब जगह फेमस है। भारत की अर्थव्यवस्था का विकास अजय है। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम उसका जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें हिंदी को और आगे लेकर जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जिस देश में जाते हैं उनका हर एक जो भी वो अपनी स्पीच देते हैं वो हिंदी में ही होती है। हमें इतना गर्व महसूस होता है कि हमारी हिंदी भाषा सारे वर्ल्ड में इतनी फेमस है। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको किसी के साथ शादी करनी है या अपनी परिवार बढ़ाना है, अगर आपको कहीं पे भी भारत में कहीं भी पर्यटन करना है, तो हिंदी जानना आवश्यक हो सकता है। ये भी जानती हूँ कि अंग्रेजी आप जानते तो भी चलता है, लेकिन आप जब हिंदी जानते हो ना, तो वो कनेक्शन ही थोड़ा अलग होता है। और हिंदी को आप एक शौक के रूप में भी सीख सकते हो। जैसे हमें कई भाषाएं सीखने का हमें इंटरेस्ट रहता है, अगर हम हिंदी सीखते हैं तो वो भी हमें बहुत फायदेमंद होती है। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इंडिया एक ऐसा देश है जहां हमें डिफॉल्ट में ही 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं। ऐसा लक हमें दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलता। अगर आप अमेरिका, चाइना, जापान या यूरोप में जाओगे तो वहां पे ज्यादातर लोग एक ही भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हम इंडियंस को हमें 3 भाषा बोलने का अपॉर्चुनिटी मिली जाती है। और अगर हम हिंदी सीखना चाहते हैं तो हमें ज्यादातर कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आसपास में ही बातचीत करें तो हिंदी हम सीख सकते हैं। हिंदी वास्तव में सीखने के लिए एक अद्भुत भाषा है, ये तो मैं कहना चाहूंगी। आज के समय में लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं और वो और जो लोग अंग्रेजी भाषा नहीं जानते वो समझते हैं कि वो पीछे रह जाते हैं। अंग्रेजी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, मैंडरिन और जापानीज के बाद।
और हमारे देश में अंग्रेजी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। सब जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे को अंग्रेजी भाषा बोलना आए। आजकल कंप्यूटर से जुड़ी अधिकतर चीजें अंग्रेजी में होती हैं। सोशल मीडिया पर भी अंग्रेजी का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर किया जाता है। अंग्रेजी का महत्व नौकरी पाने के लिए भी बहुत अधिक है। संपूर्ण विश्व में 20% जनसंख्या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करती है। अंग्रेजी का ऐसी भाषा है जो हमें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी राजभाषा को भूल जाएं या हम अपनी प्रदेशी भाषा को भूल जाएं। हर एक भाषा अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होती है। हमें सारी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर एक भाषा का अपना एक यूनिक स्टेटस होता है। व्यक्तिगत रूप से हमें जो भाषा पसंद आती है हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हर एक भाषा की जानकारी रखना हमारे लिए अति आवश्यक हो सकता है। इंडिया की जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने भी प्रदेशी भाषा पे बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दिया है। अगर हम इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी करियर को चूज करते हैं उसमें अंग्रेजी का भी उपयोग होता है, हिंदी का भी उपयोग होता है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमें 2 तरह के मीडियम होते हैं लिखने के लिए, एक है इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी जानना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने करियर में हर एक भाषा में आगे बढ़ सकते हो। इंग्लिश जानना भी जरूरी है, राजभाषा जानना भी जरूरी है। और हम अगर अपने प्रदेशी भाषा के बारे में बोलें तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं कन्नडिगा हूँ। मुझे कन्नड़ा आती है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग कन्नड़ा बात करें। जब मैं बाहर जाती हूँ और जब मैं किसी को कन्नड़ा में बात करना सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी उस आदमी के पास जाकर उससे बात कर सकती हूँ, मैं अप्रोचेबल रह सकती हूँ। ये है भाषा। जब हम जानते हैं ना, कोई भी भाषा हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, कोई भी हो, अगर हम जब वो भाषा जानते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ बात करने में बहुत इजीनेस फील होता है। और हमें कोई झिझकता नहीं होती है। अगर मैं कॉलेज में जैसे थी तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया से रहते थे, तो मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगता था। दूसरे भी लोग थे जो बैंगलोर से ही थे, उनके साथ मुझे कन्नड़ा में बात करना अच्छा लगता था। हमें जो शिक्षण मिलती है वो हमें इंग्लिश में मिलती है, तो हमें हर एक भाषा जानने का कितना फायदा होता है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया कहीं पर्यटन करने जाऊं तो अगर मुझे हिंदी पता चलती है तो अगर मुझे हिंदी जानकारी रहती है तो मुझे कोई संकट नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आराम से अपना पर्यटन करके आ सकती हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मैं नॉर्थ इंडिया गई थी, क्योंकि मुझे हिंदी मालूम थी, मैं अपने ऑफिस ग्रुप के साथ गई थी। क्योंकि मुझे हिंदी मालूम थी, मुझे आगे कर दिया गया था ताकि मैं हिंदी में बात करूं और मैं सब चीज की जानकारी लूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हिंदी जानती हूँ और उन्होंने भी एक प्रयास किया कि वो हिंदी जाने, उसकी महत्वपूर्णता जाने। ये हिंदी अगर आप पूरे भारत में कहीं भी जाएं तो किसी ना किसी इंसान को तो पता चलेगा। साउथ इंडिया में भी हिंदी का विकास हो ही रहा है। बहुत सारे लोग हिंदी में बात करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रदेशी भाषा को हमें भूल जाना चाहिए, नहीं, हमारी संस्कृति को हमें जागृत रखना चाहिए। इसके लिए हमारी प्रदेशी भाषा भी बहुत जरूरी है। और अगर हमें करियर में आगे बढ़ना है, अगर हमें विदेशों में जाके काम करना है, उसके लिए हमें अंग्रेजी जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो हर एक भाषा का अपना ही एक महत्व होता है। इट हैज इट्स ओन स्टैंड इन द सोसाइटी। अगर हम हिंदी के बारे में चाहे तो हम स्कूल से पढ़ते हैं, जैसे शाला में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर हम डिग्री में भी पढ़ते हैं। कई लोग जैसे हमारे आशा मैम है, वैसे लोग जिनको हिंदी में बहुत रुचि होती है वो अपनी पीएचडी भी हिंदी में करते हैं। ऐसा हमें भी बहुत खुशी होती थी जब मैं हिंदी क्लास में बैठती थी, जब आशा मैम हमें बहुत अच्छे से हिंदी के कविताएं, उसके ड्रामा, उसके कथा लेखन जो भी हमें समझाती थी, मैं बहुत रुचि से सुनती थी। वैसा ही है जब मैं कन्नड़ा भी पढ़ती थी, मैंने हले कन्नड़ा पढ़ा है कॉलेज में, तो मुझे उसमें भी बहुत रुचि थी। इंग्लिश लिटरेचर भी मेरा बहुत फेवरेट है। अभी पता है जब आप
कॉलेज छोड़ के बाहर जाते हैं तो आप भाषा को बहुत मिस करते हैं, आप साहित्य को बहुत मिस करते हैं। मुझे 3 साल हो गया कॉलेज छोड़ के, मुझे लगता है काश मैं लिटरेचर पढ़ सकती, काश मैं हिंदी साहित्य पढ़ सकती, काश मैं कन्नड़ साहित्य पढ़ सकती। मुझे बहुत एक एस्केप होता है, आपके डे टू डे लाइफ से एक बहुत अच्छा एस्केप होता है अगर आप साहित्य पढ़ें, क्योंकि आपको वो बहुत शांति देता है और आपको बहुत खुशी मिलती है। जैसे हम अगर विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश में पढ़ें या कबीर दास जी के दोहे पढ़ें, मैं कबीर दास जी के दोहे कभी नहीं भूलती, जो मुझे एक मेरा मनपसंद दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। जो हम सोचते हैं ना कि हम कल जाकर करें या कल कुछ करें, हम आज ही कर देते हैं, तो वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा ऐसा लगता है कि भाषा एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का। मतलब हम भाषा से दूर और भाषा हमसे दूर कभी नहीं रह सकती, क्योंकि हमें, अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से सबको बताना है तो हमें भाषा जानना बहुत जरूरी है। कोई भी भाषा रहे, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जाननी बहुत जरूरी है, कन्नड़ा जाननी बहुत जरूरी है, हिंदी जाननी बहुत, कोई भी भाषा आप जाने, उसको आप अच्छी तरीके से जाने और आपको गर्व महसूस हो कि आप उस भाषा में बातचीत कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो वहां पे उन्होंने हिंदी में ही उच्चारण किया था। कई लोगों ने बोला था कि हिंदी हमें पीछे नहीं रखती, हिंदी हमें आगे रखती है। भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इससे हम जान सकते हैं कि हिंदी का कितना इम्पोर्टेंट रोल चल रहा है। कोई भी अगर हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे तो उनके सारे भाषण हिंदी में ही थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिंदी में बात करने का प्रयास किया था। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जैसा देश वैसा बेस, जैसे हम बोलते हैं, हम जिस देश में जाते हैं उस देश की भाषा जानना जरूरी है। वैसे ही जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश की भाषा भी बोलना जरूरी है। जो लोग बाहर से कर्नाटका को आते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो वो कन्नड़ा सीखते हैं तो उनको आसानी होती है अपना चाल चलन करने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए। तो हर एक भाषा एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, जिसका कोई मैं बोलती हूँ कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक बहुत खूबसूरत भाषाएं रहती हैं, बहुत सारे डायलेक्ट रहते हैं। एक्चुअली इंडिया में करीबन 19,500 भाषाएं या डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। कोई भी देश में इतने सारे डायलेक्ट नहीं बोले जाते। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन हिंदी भी उसमें से एक है, इंग्लिश भी उसमें से एक है, और कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल इत्यादि भी एक एक उसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट, इट इज अ सेक्युलर नेशन। अगर हम कहीं भी जाएं तो हमें, अगर हम अमेरिका जाएं तो हमें बस अमेरिकन्स मिलेंगे, अगर हम जापान जाएं तो हमें जापानीज मिलेंगे। लेकिन आप इंडिया में रहोगे, आप 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको कोई दूसरा मिलेगा। जैसे आपको कोई आंध्रा से मिलेगा, कोई तमिलनाडु से मिलेगा, या कोई नॉर्थ इंडिया से मिलेगा, कोई नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा। तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि मैं इतने सारे लोगों से मिल रही हूँ। जब आप शाला या कॉलेज या कहीं भी जाते हो, वहां पे भी आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिनको मिलने से आपका भी जो नॉलेज स्पैन है वो बढ़ता है। आपका, मैंने सच बोलती हूँ, मुझे हिंदी उतना अच्छा बात करना नहीं आता। मतलब मैं हिंदी जानती थी लेकिन जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, जो मेरे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स थे, उनसे जाती हूँ और हिंदी बोलती हूँ तो वो सब मुझे बोलते हैं, मैडम आप नॉर्थ इंडिया से हो? नहीं, मैं साउथ इंडिया से हूँ, लेकिन मैं हिंदी जानती हूँ। वैसे ही मैं जब कॉलेज में थी, मैंने हर एक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में, हर एक एलोक्यूशन या डिबेट में, बीट इंटर कॉलेजिएट, इंटर स्टेट लेवल, सब जगह पार्टिसिपेट किया है। और वहां पे आप देखेंगे कि भाषा में ही तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मुझे वो भाषा नहीं आती तो मैं पार्टिसिपेट कैसे करती? अगर मैं इंग्लिश डिबेट में जाती थी तो मुझे इंग्लिश जानना बहुत जरूरी था। मैं हिंदी डिबेट में जाती या हिंदी एलोक्यूशन में जाती तो मुझे हिंदी जानना बहुत जरूरी था। अगर मैं
कन्नड़ा डिबेट में जाती थी, मुझे कन्नड़ा जानना बहुत ज़रूरी था। हमारे कॉलेज में ड्रामा का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है कि जो नरसिम्हಯ್ಯ सर ने बहुत इंटीग्रल पार्ट की तरह जॉइन किया है। नेशनल कॉलेज इज सिनोनिमस टू ड्रामा एंड आर्ट्स को उन्होंने बहुत प्रेरित किया था। तो अगर आप ड्रामा में भी देखोगे जो इमोशंस हम बतलाते हैं वो किसके किसके माध्यम से बतलाते हैं? हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से तो नहीं बतलाते, हम बोल के बतलाते हैं, जिसके लिए भाषा बहुत जरूरी है। हम इंग्लिश ड्रामा भी देखते हैं, कन्नड़ा ड्रामा भी देखते हैं, हिंदी ड्रामा भी देखते हैं। हर एक क्षेत्र में भाषा का बहुत जरूरी महत्व है। तो आप कोई भी क्षेत्र ले लो, भाषा बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप भाषा नहीं जानते तो जैसे मैंने कहा, मेरी दुनिया की सीमा मेरी भाषा से है। अगर मैं कोई नई मुझे आजकल कॉलेज में जब हम लास्ट सेमेस्टर में थे तो मुझे जर्मन सीखने का मौका मिला था। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं जर्मनी जाऊंगी तो मुझे जर्मन भाषा बहुत फायदेमंद होगी। और अगर कोई बाहर से इंडिया आना चाहता है तो उसे हिंदी बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि वो कहीं भी भारत में जाकर हिंदी जानता है तो वो आराम से रह सकता है। आप कहीं एक्टर्स को देखते हो, कहीं कई सोशलाइट्स को देखते हो, कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो जो हिंदी सीखते हैं। आप ये भी सुनते हो कि हाल ही में ही बहुत सारे सॉन्ग्स इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदी सॉन्ग्स कन्नड़ा में कन्वर्ट हो रहे हैं, अडेप्टेशंस हो रहे हैं हिंदी चित्रों के। जैसे आपने बाहुबली में देखा, बाहुबली कितनी सारी भाषाएं में आई, बाहुबली हिंदी में आई, कन्नड़ में आई, तेलुगु में आई। तो अगर आप देखेंगे तो हम अगर मैं बाहुबली देखना चाहूंगी तो मैं बाहुबली किसी भी भाषा में देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे कन्नड़ा भी मालूम है, मुझे इंग्लिश भी मालूम है, मुझे तेलुगु भी थोड़ी-थोड़ी आती है। तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी जाके करियर बनाऊँ, अगर मुझे दिल्ली में जाके काम करना होगा, तो मुझे हिंदी आती है। अगर मैं आईएएस लिखना चाहती हूँ, तो हिंदी का बहुत महत्व होता है। अगर मैं केएएस लिखना चाहती हूँ, तो कन्नड़ा का बहुत महत्व होता है। तो हर एक भाषा का अपना ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। अगर हम डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या एक पीस ऑफ माइंड, जैसे मैंने बोला अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो भाषा जानना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि दूसरी चीजें जानना जरूरी नहीं है, जैसे विज्ञान के बारे में जानना जरूरी है, वाणिज्य के बारे में जानना जरूरी है, कॉमर्स के बारे में जानना जरूरी है, जैसे मैं टैक्सेशन और ऑडिट भी करती हूँ, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे नॉर्थ इंडियन क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं हिंदी में बात करती हूँ तो उनको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनको बहुत आराम मिलता है, कि उनको वो एक कंफर्ट लेवल रहता है कि मैं उनकी भाषा में बात कर सकती हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बैंगलोर से ही हैं जिनसे मैं कन्नड़ा में बात करती हूँ, उनको वो कंफर्ट लेवल रहता है कि वो मुझे पूछते हैं कि आपको कन्नड़ा आती है? हाँ, मुझे कन्नड़ा आती है, तो हम उससे कन्नड़ा में ही बात करते हैं। और कुछ मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिनको अंग्रेजी में बात करनी है, लेकिन वो खासकर पूछते हैं क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी जानना चाहती हूँ और हिंदी का प्रयास करना चाहती हूँ, मैं हिंदी सीखना चाहती हूँ, मैं इंडिया को विजिट करना चाहती हूँ। तो अगर आप मुझे हिंदी सिखाएंगे तो मैं इंडिया में आकर आराम से कहीं भी पर्यटन कर सकती हूँ। इंडिया बहुत खूबसूरत देश है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ आपको सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे। आपको रेगिस्तान मिलेगा, आपको पहाड़ मिलेंगे, आपको समुद्र मिलेगा, जो अगर आप दूसरे देशों में जाएं तो उसमें से कोई एक चीज वहां आपको मिलती है। तो अगर आपको उसको पर्यटन करना है तो आपको, अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड जाओगे आपको हिंदी बहुत आवश्यक होगी, या आप साउथ इंडिया होगे आपको वहां की प्रदेशी भाषाएं का बहुत यूज होगा। तो ऐसे लगता है कि अगर आप कोई भी भाषा जानते हो, एक ही भाषा जानते हो, कोई भी भाषा जानते हो, तो उसका महत्व बहुत अधिक रहता है। तो इस हर एक भाषा का अपना ही एक इंडिविजुअलिटी रहती है। मैं ऐसे नहीं कह सकती कोई भी भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है या बहुत फेमस है या ये सीखना बहुत जरूरी है। आप जो भी भाषा सीखो उसे अच्छे से सीखो और उसका प्रयोग करो दिन प्रतिदिन की नित्याओं में, और आपको सच में बहुत आनंद मिलेगा कि अगर आप जिस भाषा को जानते हो, अगर वो दूसरा व्यक्ति भी उसी भाषा को जानता है तो आपको उनमें बात करने की बहुत खुशी मिलेगी और बहुत आनंद मिलेगा। तो मैं ये कहूंगी कि
दिस इज माय बर्ड्स आई व्यू ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और सारी भाषाएं, हिंदी पर मैंने ज्यादा फोकस किया था। हिंदी भाषा एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है। अगर आप इस हिंदी भाषा को सीखते हो और इसका प्रयोग करते हो तो मुझे भी खुशी मिलेगी, आशा में को भी खुशी मिलेगी, हिंदुस्तान के सभी वासियों को भी खुशी मिलेगी। सारी भाषाएं जानो, सारी भाषाओं का उपयोग करो, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद। अनेक अनेक धन्यवाद मसीहा जी। दोस्तों, मसीहा ने सारे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कन्नड़ और आम हिंदुस्तानी के अनेक जितने भी भाषाएं हैं उनके सारों का आपको निचोड़ साक्षात रूप में बतलाया है। बड़ी सुंदर भाषा, बहुत अच्छे से जैसे कहते हैं कि मूर्ति छोटी है उनकी कीर्ति बड़ी है, वैसे ही मैं मसीहा के बारे में कहूंगी, छोटी सी है मेरी लाडली मगर बहुत कुछ कह गई है। उन्होंने हिंदी के माध्यम से भारत का सारा परिचय किया है और मुझे लगता है ये सारी चीजें सभी के लिए लाभान्वित हुई है। यहाँ तक मेरे छात्रों के लिए, मेरे यहाँ पर जितने भी शिक्षक मित्रगण हैं उन सभी के लिए ये सारी जानकारी बहुत ही उपयोगी शामिल हुई है। और मुझे लगता है कि मसीहा ने हमारे सारों के जो बातें चाह रहे थे हम, उन सारे चीजों को बिल्कुल बढ़िया ढंग से बतलाने की कोशिश की है। यदि किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या नहीं है तो हम यहाँ पर धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं जयनगर नेशनल कॉलेज के प्राचार्य महोदया डॉक्टर वाईसी कमला जी का अनेक अनेक तह दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। उन्होंने अपने बहुत ही प्रेरणा दी और उस कारणवश यह बहुत सफल हुआ है। साथ में मेरी अच्छी प्यारी सी सहेली जिसे मैं भारती मैडम कहती हूँ, उनको भी जो अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षा है उसको भी अनेक अनेक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। डॉक्टर सविता जी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। यहाँ पर पधारे मेरे सारे विभाग के अध्यक्ष और सारे प्राध्यापिकाएं, प्राध्यापकगण, प्राध्यापक वृंद को मेरी डिपार्टमेंट से आप सभी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। सबसे पहले हम आसिफ सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका अथाह प्रयास, उनके कोशिशें, उन्होंने हमें बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की है, इसलिए हिंदी विभाग की ओर से मैं आसिफ सर का अनेक अनेक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। गिरीश सर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था उनका अनेक अनेक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और एक बार धन्यवाद। जीते रहो, खुश रहो।